Hello students of class 12. So today I am going to continue the topic of inverse trigonometric function. So here I am going to discuss some of the remaining properties. So by using this property you can easily solve the questions. Okay. So come to first property. The first property is sin inverse of x. We can write it as cos inverse of root over 1 minus x square. Similarly, cos inverse of x, we can write it as sin inverse of root over 1 minus x square. Tan inverse of x, we can write sin inverse of x by root over 1 plus x square. So, see here, sin inverse is converted to cos inverse. So, we can convert sin inverse to any inverse trigonometric function if we know the identity. Okay. So, the identity which we have studied in class 10th. Okay, so the first identity is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So by using that identity, I am going to prove the first property. So let us do it. So see here, I have taken sin inverse of x because sin inverse x is our left hand side. So I have taken sin inverse of x is equal to theta. So by that way we can write x is equal to sin theta. And by the identity we know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay. So here from using this this identity we can write cos theta is equal to root over 1 minus sin square theta. So then cos theta will be equal to root over 1 minus x square because sin theta is equal to x, therefore sin square theta will be x square. Okay. So here now theta can be written as cos inverse of root over 1 minus x square. When we apply cos inverse to both sides, we will get theta is equal to this much. So see, at first what was our theta? Theta is sin inverse of x, and finally we got theta is equal to this much. So from this two equation, that means this equation and this equation, we can write that sin inverse of x is equal to cos inverse of root over 1 minus x square, which is our first property. Okay. So by that way you can also prove the second property, and also you can prove the third property. See here, here we are converting sin to cos. Like that, if you want to convert to other inverse trigonometric function, for example tan, then you have to use that identity. Okay. So here you can see here sin theta is given. See, sin theta is given is equal to x, cos theta is given as root over 1 minus x square. So if we want to find the value of tan, means if you want to convert it into tan inverse, then what you have to do, you have to use these two equations, that means this sin theta and this cos theta. So we want tan. So how we form tan? We can divide equation 1 by 2 so that we get sin theta by cos theta equal to tan theta. And in right hand side we got x by root over 1 minus x square. So by that way we can find the value of tan theta, and if we find the value of tan theta, we can also find the value of theta. It will be tan inverse of that value. Okay. So tan inverse. So theta is equal to we got what? Tan inverse of that value, that is x by root over 1 minus x square. So see here, what we have taken theta we have taken sin inverse of x. Again I am converting into what? Theta is equal to what? Tan inverse of this value. So we can say what? From this equation and the first equation we can say sin inverse of x is equal to tan inverse of x by root over 1 minus x square. So like this way we can convert any inverse trigonometric function to the other trigonometric function. Okay. So try to do 1, 2, 3 number. Next come to number 2 property. Number 2 property is, see here, sin inverse of x plus sin inverse of y is equal to sin inverse of bracket x into root over 1 minus x square plus y into root over 1 minus x square. Okay. So let us prove property number 2, 1. So see, this is the proof. Suppose we have taken, let's say, sin inverse of x is equal to a and sin inverse of y is equal to b. By that way we can write x is equal to sin a and y is equal to sin b. And a comma b belongs to what? Closed interval minus 90 to plus 90, which was the
range of sine. Next, from this we can write cos A is equal to root over 1 minus x square, and from this we can write cos B is equal to root over 1 minus y square. So we know the formula of sin A plus B. So we will put this formula, we will put the value of sin A and cos B from above to this formula. So finally we got what? A plus B is equal to sin inverse of this much. So what was our A? We have A is equal to sin inverse x, so we will put sin inverse of x. Then plus, in place of B we can put what? Sin inverse of y. So finally we have the formula property number 2, 1. Okay. So this is about some properties. So these are some more properties, 3 and 4. 3 number is for cos inverse of x plus cos inverse of y, and cos inverse of x minus cos inverse of y. And in 4 we have the formula for type 2 sin inverse x and 2 cos inverse of x. So try to remember the properties. Proof, they will not ask the proof, but you must know how to convert a trigonometric and inverse trigonometric function to another inverse trigonometric function. Okay, so let us do some questions. So next question is, my first question is, you have to prove 3 sin inverse of x is equal to sin inverse of 3x minus 4x cube, comma, condition is given x belongs to closed interval minus 1 by 2 to plus 1 by 2. So this question is from book exercise number 2, that will be 2.2. Okay, so here first of all you will take, let sin inverse of x is equal to theta. So by that way we can write what? X is equal to sin theta, comma, theta belongs to what? Closed interval 90 degree to plus 90. Already we know this. Okay, this is the range of sin inverse. So next we know we have the formula for sin 3 theta. So why I have taken sin 3 theta formula? See here, this is the same what we have got in class 11 in the formula of sin theta, sin 3 theta. Okay, so in sin 3 theta we have 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So we can use that formula. So sin 3 theta is equal to क्या हो जाएगा? 3 sin theta minus 4 sin cube theta. So see, sin theta we know that what is the value of sin theta, that is x. So we can write x. So finally क्या लिख सकते हैं हम? sin 3 theta is equal to 3x minus 4x cube. Okay, so this is equation 1. So अभी देखो, अभी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग को इजीली समझ में आ रहा है कि हमको प्रूफ करना है sin इनवर्स ऑफ 3x minus 4x cube is equal to this. तो यहाँ से हमारा sin इनवर्स आराम से आ जाएगा अगर हम लोग दोनों तरफ में sin इनवर्स को अप्लाई कर दें तो. बट यहाँ पे हमको कंडीशन देखना है. sin इनवर्स अप्लाई करने के पहले ये कंडीशन देखना होगा कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है. तो x का जो गिवन कंडीशन था x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1/2, 1/2. तो हम लोग उसको लिख लेंगे. और अगर x इसमें बिलोंग करेगा तो थीटा किस में बिलोंग करेगा हमको ये देखना होगा. जैसे कि हम लोग को मालूम है अगर x बिलोंग करता है इसमें तो -1/2 और 1/2 कब होता है हम लोग को ये देखना होगा साइन का वैल्यू. तो ये 30 डिग्री में होता है. उस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू -π/6, +π/6 लिख सकते हैं. अगर थीटा इसमें बिलोंग करेगा तो 3 थीटा, मतलब इसमें जब मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो किस में बिलोंग करेगा हमको ये देखना होगा. ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं देखो, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, 3 थीटा लिखा है. तो हमको देखना होगा कि ये हमारा रेंज में है कि नहीं. समझ में आ रहा है, ये साइन इनवर्स का रेंज में है कि नहीं, हमको वो देखना होगा. तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, 3 थीटा के लिए चेक करना है. सो आई एम मल्टीप्लाई by 3. So when we multiply 3 we will get 3 theta. तो हमको 3 थीटा मिलेगा. 3 थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इसको भी तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, -92 +90 क्लोज्ड इंटरवल. और हमको पता है कि ये साइन इनवर्स का रेंज में है. सो वी कैन अप्लाई साइन इनवर्स टू बोथ साइड. सो जब हम लोग इक्वेशन 1 को अभी सॉल्व करेंगे, देखो वहाँ पे साइन इनवर्स हम लोग दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जा रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा. तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको डायरेक्टली 3 थीटा लिख सकते हैं. पहले भी मैंने इसको
बताया है तुम लोग को। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिख सकते हैं 3 थीटा, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, यही है इम्पॉर्टेंट स्टेप जहाँ पे तुम लोग को ध्यान देना है, कंडीशन का यूज करना है जो गिवन कंडीशन दिया है, एज वेल एज जो हम लोग का रेंज था, वो जो टेबल मैंने दिया था वो टेबल का हम लोग को यूज करना है। सो अभी हम थीटा के जगह में क्या लिख सकते हैं, थीटा वी ऑलरेडी वी नो थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। सो वी विल पुट साइन इनवर्स ऑफ एक्स इन प्लेस ऑफ थीटा, सो वी गेट 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4 क्यूब। सो विच इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे। सो सिमिलर वे में क्वेश्चन 2 3 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के लिए है, तो तुम लोग को मालूम है जैसे साइन इनवर्स का था फॉर्मूला, उसी तरह कॉस 3 थीटा का भी फॉर्मूला था, वहाँ पे हमको ये यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो इसमें जो प्रूफ दैट है, ये कुछ प्रूफ्स है, तुम लोग कर लेना उसको। सो मैं जा रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये मुझे फंक्शन दिया है, इसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के पहले देखो, तब सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाहर कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बाहर है tan इनवर्स। सो हम लोग को इस क्वेश्चन को किस तरह से करना होगा, हमको इसको चेंज करना है, यानी जो अंदर में ये जो है इसका जो वैल्यू है, इस वैल्यू को चेंज करना है। बट इस वैल्यू को किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, हमको यहाँ पे कुछ x के जगह में हम लोग को कुछ पुट करना होगा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग x के जगह में क्या पुट कर सकते हैं जिससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस होगा। सो यहाँ हम लोग x के जगह में पुट करेंगे tan थीटा। सो वाई tan थीटा, बिकॉज देखो रूट के अंदर में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के बाहर निकालने के लिए हमको अंदर वाला जो फंक्शन है, अंदर जो है उसको हम लोग को स्क्वायर बनाना होगा। स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग को यूज करना होगा आइडेंटिटी का। ओके, तो आइडेंटिटी कौन सा हम लोग लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो वो तुम्हारा एक फंक्शन में रिड्यूस हो जाएगा, जिससे क्या हो रहा है, वो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर होगा और जो रूट, वो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे x के जगह में tan थीटा ले लिया, जिससे क्या हो जा रहा है, थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख सकते हैं। बट इसको अभी हम लोग यूज नहीं करेंगे, इसको बाद में यूज करेंगे। तो x का वैल्यू है tan थीटा, यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो इट विल बिकम sec स्क्वायर थीटा। So square and root will get cancelled. So finally we got sec theta minus 1 by tan theta. Okay. अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग अभी ये जो ब्रैकेट के अंदर का टर्म है उसको हम लोग tan बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो बाहर tan इनवर्स है, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ऑलरेडी हम लोग को मालूम है वो फंक्शन मिल जाता है हम लोग को, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x अगर आ जाता है तो x हम लोग लिख सकते हैं उसको। सो ब्रैकेट के जो इनसाइड में जो टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, अब सबसे पहले हम लोग sec को चेंज कर सकते हैं इनटू 1 बाई cos, और tan को हम लोग लिख सकते हैं sin बाई cos। ठीक है, तो उसको करके हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हम लोग चेंज कर दे रहे हैं उसको। सो फाइनली न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin थीटा, बिकॉज इसका जो डिनोमिनेटर है cos और इसका न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है वो cos कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ फाइनली हमको मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये इसके आगे का प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हियर यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो व्हाट वी हैव, सी वी हैव cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमको मिला था फॉर्मूला। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, एंगल को ऑफ कर दिए। अभी क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा। मुझे ये क्यों बनाना है, देखो क्योंकि मुझे 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला चाहिए, जो कि मेरे पास मुझे यहाँ से ही इस फॉर्मूला से ही मिल सकता है। तो मैंने यहाँ से क्या किया है, 1 माइनस cos थीटा को यहाँ पे मैंने लिख लिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से मिल गया मुझे। तो अभी इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 न्यूमरेटर में। एंड डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा, तो उसके लिए मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, दैट इज 2 साइन थीटा cos थीटा।
सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंगल को हाफ करते हैं साइन थीटा हो जाता है, वहां क्या लिखोगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो हम लोग साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो इससे हम लोग क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा का एक टर्म न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली इन ब्रैकेट वी हैव sin थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाय cos थीटा बाई 2 which can be written as tan theta by 2 क्योंकि sin by cos tan होता है। तो यानी फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा by 2 आ गया। तो फाइनली वी कैन राइट थीटा by 2 और इन प्लेस ऑफ थीटा ऑलरेडी मैंने बोला था जिसको हमको बाद में यूज करना है, दैट इज x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। वो जो थीटा है क्योंकि वो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हम लोग थीटा के टर्म्स में जो हम लोग का आंसर है उसको नहीं रख सकते बिकॉज थीटा हम एज्यूम कर रहे हैं, हमको x के टर्म में उसको चेंज करना होगा। तो क्या होगा, ये थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x होल डिवाइड बाय क्या 2। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखो ये है, ठीक है। तो इस वे में जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले एनालिसिस करो कि कौन सा आइडेंटिटी होगा यूज, और उस हिसाब से तुम लोग स्टार्ट करो करना, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं और एक क्वेश्चन करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। तो तुम लोग बाकी सारा क्वेश्चन को ट्राई करना। सो सेकेंड क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x। सी यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है अंदर में, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 1 माइनस cos x का अभी मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां पे हम लोग को फॉर्मूला मिला था, हम लोग 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली वहीं पे तुम याद करो cos 2 थीटा का भी हमारे पास और एक फॉर्मूला है, cos 2x इज इक्वल टू क्या था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो यूज दिस फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos x। पहले एंगल को हाफ करोगे, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, फिर 1 को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे तो cos x प्लस 1 हो जाएगा, cos x प्लस 1 का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से। तो उसको डिनोमिनेटर में पुट करना है, न्यूमरेटर में जो भी प्रीवियस अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया उसी में से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो उसको पुट करने के बाद देखना ये जो स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म है वो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 में चेंज हो जाएगा, दैट मींस tan स्क्वायर x बाई 2 में चेंज हो जाएगा। तो tan स्क्वायर x बाई 2 को जो मतलब उसका जो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे तुम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो इसको तुम लोग ट्राई करना। अभी आता है क्वेश्चन 3 में, देखो क्वेश्चन 3 है tan इनवर्स ऑफ x बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी यहाँ देखो a इज अ कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखो यहाँ पे है x और यहाँ पे है रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी हम लोग को इस पार्ट को होल स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे। सो विच आइडेंटिटी वी कैन यूज, सी हियर वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, x को हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं a साइन थीटा। क्यों a साइन थीटा ले रहे हैं, देखो बिकॉज यहाँ पे a स्क्वायर है, हम अगर x की जगह में a साइन थीटा लेते हैं तो देन इट विल बिकम व्हाट a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो बाय दैट वे वी कैन टेक कॉमन, a स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है वो, तो a स्क्वायर को कॉमन लेके रूट के बाहर अगर निकाल देते हैं तो वो a हो जाएगा, और अंदर में यहाँ पे बचेगा 1 माइनस दिस विल बिकम व्हाट साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा का होल स्क्वायर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग को मालूम है, आइडेंटिटी यूज करोगे cos स्क्वायर थीटा होता है, तो रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा होगा तो वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें पुट करके इसको करते हैं, ठीक है। सो x को हम लोगों ने ले लिया है a साइन थीटा, सो x बाई a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे मैं x बाई a इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज मुझे थीटा को फाइंड करना है यहाँ से। ये फाइनली हम लोग को जो आंसर चाहिए वो थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए बिकॉज थीटा हम एज्यूम कर रहे हैं, सो x के टर्म्स में हमको उसको कन्वर्ट करना होगा। सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, इसको हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो x का जगह में हम क्या लिखेंगे a साइन थीटा। सो देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू a साइन थीटा, सो वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ a साइन थीटा होल डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर माइनस a square sin square theta. So by taking a square as common, we can write 1 minus sin square theta in root, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है sin theta by cos theta। तो sin theta by cos theta क्या हो जाएगा tan theta, tan और tan इनवर्स of tan theta क्या लिख सकते हैं थीटा।
सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। सो इस वे में हम लोग क्वेश्चन बाकी सारा कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग ट्राई करना, कोई भी डिफिकल्टी हो तो पूछो, ठीक है। सिंपलेस्ट वे में इस तरह से रिड्यूस किया जाता है क्वेश्चन करने के पहले, लेकिन बार बार देख लेना क्या सब्सटीट्यूट करेंगे जिससे इजी वे में हो जाए, सिंपलेस्ट वे में हो जाए, ठीक है। एंड यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, जहाँ जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करना है वहाँ पे करोगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6। तो इस तरह का क्वेश्चन आने से कैसे करोगे, देखो यहाँ पे we cannot write directly 5π/6 as 5π/6 not belongs to the range of sin inverse. Okay, so we have to convert 5π/6 into the range of sin inverse. sin inverse का जो range है, range क्या था, -10t to +10t क्लोज इंटरवल, उस रेंज पे हमको इसको लेके जाना होगा, लेकिन इसको हमको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो 5π/6 को हम कैसे कन्वर्ट करें, तो उसको हम लोग को सबसे पहले चेक करना है। So in place of 5π/6 we can write pi minus π/6, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो sin pi minus x, sin pi minus x का ऑलरेडी तुम लोग फॉर्मूला जानते हो, क्या था ये, sin x, याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 में हमने पढ़ा था इसको। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin pi/6 लिख सकते हैं। किसके जगह में, sin pi minus x, sin pi minus π/6 के जगह में sin pi/6 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अभी देखो, अभी हम लोग डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, π/6, क्योंकि π/6 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, है ना, ये उसका रेंज में बिलोंग करता है, -90 to +90। सो वी कैन राइट नाउ π/6 बिलोंग्स टू व्हाट, -90 to +90 क्लोज्ड इंटरवल। सो द फाइनल आंसर इज व्हाट, π/6। ओके, सो इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन करोगे, करने के पहले देख लोगे रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड 2 sin इनवर्स ऑफ 3/5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 17/30। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो किस तरह से करेंगे, बिकॉज देखो sin इनवर्स का वैल्यू यहाँ 3/5 दिया है, जो कि हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं है, हम लोग को मालूम नहीं है, ना कि tan का ये वैल्यू हमको मालूम है। तो हम लोग इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करें, हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो कोई भी प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, देखो ऑलरेडी हमारे पास tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, या फिर हम लोग के पास फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स ऑफ x के लिए, है ना। तो हम लोग अगर यहाँ पे इसको अगर tan इनवर्स x में चेंज कर देते हैं, tan इनवर्स में, सो 2 tan इनवर्स ऑफ x का हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो हम लोग उसमें इसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका हमारे पास फॉर्मूला है। सो वी कैन कन्वर्ट साइन इनवर्स टू tan इनवर्स। तो कैसे करना है, ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को बताया है, साइन इनवर्स को tan में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इसको सपोज करना होगा एज x, ओके। सो हम लोगों ने क्या पुट किया, देखो लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x इज इक्वल टू 3/5। तो अगर sin x दिया है तो sin x हम cos x फाइंड कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये आ गया इतना 1 - 9/25 का रूट, दैट विल बी व्हाट, अगर इसका सॉल्व करोगे तो ये √16/25 होगा, दैट विल बी 4/5। तो अगर हमारे पास sin x है, cos x है, तो हम tan x इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके। तो tan x कितना आ जाएगा, इट विल बी 3/4। तो डिवाइड करोगे तो tan x तुम लोग को यहाँ से मिलेगा 3/4। तो अभी tan x से हम क्या लेंगे, x लेंगे, x कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4। अभी देखो x हमारा क्या था, x हम लोगों ने ये लिया था sin इनवर्स ऑफ 3/5, और फाइनली सब सिंप्लीफिकेशन करके अभी x हमारा कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो अभी इसको हम लोग कहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे। तो sin इनवर्स किस पे कन्वर्ट हो जाता है, अभी tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखते हैं अभी। सो देखो फाइनली हम लोग लिख रहे हैं 2 sin इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह हम लिख रहे हैं 2 tan इनवर्स, क्योंकि sin इनवर्स tan में चेंज हो गया। सो tan इनवर्स ऑफ 3/4 माइनस ये जो पीछे था वो इन टर्म। नेक्स्ट देखो 2 tan इनवर्स x का हमारे पास फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, तो वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। याद करो मैंने 2 tan इनवर्स x का 3 दिया था प्रॉपर्टी में,
तो एक उसमें से था जो tan इनवर्स में चेंज हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे tan इनवर्स में इसीलिए चेंज कर रही हूँ बिकॉज फर्दर हमको क्या मिलेगा यहाँ पे फाइनली tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। सो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, इसीलिए मैं किसमें चेंज कर रही हूँ, tan इनवर्स में। मेरे पास sin इनवर्स और cos इनवर्स का भी था फॉर्मूला, बट मैं tan इनवर्स में चेंज करूंगी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी है इसके लिए, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह हमारा 3/4 है, तो 2 into 3/4 1 minus 3/4 स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट वाला टर्म की जगह। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है 24/7 और पीछे जो टर्म था वही रहेगा। अभी तुम यहाँ पे क्या करोगे, tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला को अप्लाई करोगे, और जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसको साइड साइड में लिखते जाना सिंस वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ओके, सो फाइनली tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 625/625 इन ब्रैकेट, तो वो कैंसिल करेंगे तो 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है, π/4 हम लोग को मालूम है। हम 1 की जगह tan π/4 लिखेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट π/4 इसीलिए लिख सकते हैं बिकॉज π/4 बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ tan इनवर्स। तो इस तरह से फाइनल आंसर है π/4। तो ये मैंने आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया, तो तुम लोग मिसलेनियस का और जो लास्ट एक्सरसाइज है दैट इज 2.2 उस एक्सरसाइज को करना।